नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है फिर से पासीघाट न्यूज़ पे। आज हम आए हैं NEIFMR पासीघाट। आज यहाँ पर लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन रखा गया है। तो आइए देखते हैं। Who are closely associated with studying of our Ayurveda college. Our students know, others may not be knowing it. Dr. Dinesh Barwa, who is with us. Yeah. So he is the founder of this Ayurveda college, which is Teachers Code. We have applied for permission to NCISM, and during this process, with his effort, with his advice, the NCISM is kind enough to give us the permission, and he is the first principal of this Ayurveda college. So thank you, sir. Let us just briefly comment on today's seminar. As we have said that our continued process, we have been engaging through our own research as well as through our projects. We have been documenting the folk medicine. To make our objective clear, as I said, we are mainly concentrating our focus on the uncodified system of medicine, which probably has become endangered or threatened, because this knowledge is being transmitted to oral traditions, because these oral traditions follow the ecological principles of transfer of energy from one trophic level into another. Because in that system, what happens? 100% of the energy is never transferred or transmitted to the next level. Some portion get lost in the form of heat, in the form of some other energy. So 100% is not transmitted. The same thing is happening with the oral tradition. Even if that person wanted to transfer the knowledge also, ek, do, subject, chut jate. So at every stage of transfer there is a loss. So there is an urgent need. Though if हम लोग अगर साइंस में दिखाया जाए तो when we say documentation, it sounds very simple. But for this folk medicine, a proper documentation is the urgent need. And we have been doing with our strength. And for that we need more collaborations. And for that we also have signed some MOUs with various organizations, including our JNC, CHF, with Dibrugarh University, Guwahati University, and we are planning more on that. Another objective that we have is we also cannot just alone. A small team cannot carry out all the activities. We also need the students, community, and researchers. Infuse the importance of research in general and the need, urgency of its documentation in folk medicine. We need to engage the students community. Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasantu Mal Pasiddu Bhagavad. May all be happy, may all be healthy, may all experience prosperity in everything, may all be free from sufferings. So at the very outset, I congratulate and appreciate the team of the NEIFM because of the sensitive and very important topic was discussed today and organized a national seminar on LHT, local health tradition. We know that according to WHO, World Health Organization, 60% population of India in rural area using the local health tradition at the first primary step of the treatment. And worldwide, 60% population, according to WHO, they are using the primary health care at the doorstep of the using the available plants, spiritual herbs, herbs, foods, anything for the primary health care. So God gifted our Northeast region, you know the 50% medicinal plant perhaps represent from Northeast region. And especially Arunachal Pradesh is a reservoir of medicinal plants. So timely, and we have to validate scientifically all LHT. We have many attended, organized, also folklore like traditional medicine,
local health traditions. When the whole world under the darkness of the medical science, in India, more than 5,000 years back, we are treating the patient. Is very proud of the Indian heritage culture. This is traditional medicines. The two countries of the world, first China and India, is the oldest uses evidence of the local health tradition or medicinal plants. Although we have to go for scientifically validation of the local health tradition. A very good morning to all present in this August gathering. Respected Director Dr. Karam, Dr. Bua, Dr. Singh, Dr. Tanti, Dr. Temeng, Dr. Bauri, and other invited guests to this national seminar, as well as the team of this institute who are working last few days continuously to organize this particular national seminar, and then researchers and students. This was supposed to be held in September 2020, probably, if I am not wrong, because at that time also I was contacted, and accordingly I agreed to come here. But because of various reasons, today we came to know that first it was an inspection, second the initiation of the college. So this type of things are there in between, because of which today national seminar was not conducted at that time. It was postponed. Now the time has come to make the get together here. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। मैं डॉक्टर इमली खंबा, चिकित्सा अधिकारी, पूर्वोत्तर आयुर्वेद लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पासीघाट से हूँ। आज का जो सेमिनार है ये एक्चुअली ट्रेडिशनल हीलर्स, जो हम लोग बोलते हैं कि ये चिकित्सा जो करते हैं विद द यूज़ ऑफ प्लांट्स, ये सब के ऊपर लोकल ट्रेडिशंस को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं उसके ऊपर है। और हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्पेसिफिकली जो ट्रेडिशनल हीलर्स के ऊपर बेस करके उनका रिसर्च और स्टडी के ऊपर ये इंस्टीट्यूट बेस्ड है। और आज ये जो सेमिनार है इट इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीवन, बिकॉज आजकल बहुत सारा जो मेडिसिन होता है वो बेस जो होता है वो ट्रेडिशनल हीलर्स का ही होता है। और बहुत सारा आजकल तो आयुष सिस्टम ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं उसको दो भाग में डिवाइड कर सकता है। एक होता है आपका कोडिफाइड और एक होता है नॉन कोडिफाइड। कोडिफाइड सिस्टम जो होता है वो एक स्पेसिफिक, मतलब 10+2 साइंस पढ़ने के बाद आप होम्योपैथी आयुर्वेदा ऐसे जो पढ़ने जाते हैं उसी को हम लोग कोडिफाइड बोलते हैं। और नॉन कोडिफाइड जो होता है, जैसे कि आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है, जैसे माँ बाप से सीख के आया, ट्रेडिशनल हीलर्स जो हो गया, और ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं, ये सब चीज़ जो होता है ये आपका नॉन कोडिफाइड सिस्टम में होता है। तो बेसिकली आज का जो सेमिनार है वो ट्रेडिशनल लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस उसके ऊपर बेस करके है। और सर, जो आज देखा गया कि यहाँ पर आज बहुत से स्टूडेंट आए हैं, Yes. तो आप उन लोगों
उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए सर, आज जैसे कि हम लोगों का इंस्टीट्यूट जो होता है, पहले जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन था, अभी नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे रिसर्च ऑन आयुर्वेदा भी हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स एट अ ग्रास रूट लेवल नॉलेज को डिसमिनेट करने के लिए, और बहुत सारा चीज़ में आजकल क्या हो रहा है कि नॉलेज जो होता है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। तो बेसिकली उनको भी एक बूस्ट देने के लिए और क्या क्या हम लोग रिसर्च कर सकता है, तो स्टूडेंट कम्युनिटी को हम लोगों को बढ़ावा देना है और रिसर्चर्स को भी बढ़ावा देना है। तो ये चीज़ जो होता है स्टूडेंट कम्युनिटी को एक जिस देने के लिए, तो वो लोग क्या क्या कर सकता है इस फील्ड के ऊपर, तो उस चीज़ को भी फोकस करके बहुत सारा रिसर्चर्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए और स्टूडेंट कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। मैं डॉक्टर अमल बावरी, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च का एज ए बोटनिस्ट यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है एग्जैक्टली एक नेशनल सेमिनार हो रहा है और उस नेशनल सेमिनार का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे साथ है कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इमली कुंबा। तो नेशनल सेमिनार जो टाइटल है हम लोग का आप देख ही पा रहा है, रिसेंट एडवांसमेंट इन लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन जो है एग्जैक्टली हम लोग जो बोलते हैं, जो लोकल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन या ट्राइबल मेडिसिन जो बोलते हैं एग्जैक्टली उसके ऊपर रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, उसको साइंटिफिक वैलिडेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस, ताकि ये जो नॉलेज सिस्टम जो है एग्जैक्टली हम लोग का फोर फादर के हम लोग का कम्युनिटी एल्डर्स के बीच में है, लेकिन एग्जैक्टली इट नीड टू बी कंजर्व, इट नीड टू बी प्रैक्टिस, इट नीड टू बी प्रिजर्व। और इसको आगे साइंटिफिक वैलिडेशन भी करना चाहिए ताकि इसको जो मेन मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ताकि हेल्थ केयर बेनिफिट के लिए पब्लिक के लिए हम लोग यूज़ करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली इसका साइंटिफिक वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन खूब ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम एग्जैक्टली हम लोग का बीच से ख़त्म हो रहा है, पूरा ख़त्म होते जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंटेशन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स का बहुत ज़रूरी है। और लोकल हेल्थ ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस ये एक अनदर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से, तो डेफिनेटली ये सारा नॉलेज सिस्टम को भी हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। और अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन द साइंटिफिक वैलिडेशन, क्योंकि साइंटिफिक वैलिडेशन होना चाहिए फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो ये था आपका डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स। और आज का रिसोर्स पर्सन हम लोग आए हैं डॉक्टर प्रोफेसर दीपक सेतिया, फार्मास्यूटिकल साइंस के हैं, डीन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर भवेन टटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, ही इज ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस। अगेन वी ऑल्सो हायर्ड वन आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स डॉक्टर दिनेश बरुआ, who was also principal of our Ayurveda colleges. Again, local experts, very widely popular among the Adi community or Adi belt, that was Dr. Temim Payum, who is the associate professor of the JNC, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट का जो एसोसिएट प्रोफेसर है। टेमिम पायम सर भी हम लोग का बीच में है। तो लगभग आपका अराउंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट से पार्टिसिपेंट आ चुका है, इंडिया का भी और कुछ पार्ट से आ चुका है प्रेजेंटेशन करने के लिए, पुस्तक प्रेजेंटेशन के लिए। तो आज पूरा दिन भर एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर चर्चा रहेंगे और टॉपिक के ऊपर एक्चुअली हम लोग क्या आउटकम कर सकते हैं, शाम को आप लोग को भी ये आउटकम्स के बारे में एक्चुअली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। 2021 से मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है नेशनल सेमिनार ऑन लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस और इसका चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो पहले तो मैं आप मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आए हैं, हमारा प्रोग्राम को कवर किया है। तो ये जो आज का जो सेमिनार है इस रीजन में पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत रिलेवेंट है। लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस जो है ज़्यादातर इतना ट्राइब्स है यहाँ पे, इसका लोकल हेल्थ जो हीलिंग प्रैक्टिसेस है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है कि 80% ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन से या ट्रेडिशनल मेडिसिन से डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट भी इसका एक जो मैंडेट है वो लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस पे ही है। तो इसको मैंडेट से जोड़ के तो आज का ये सेमिनार जो है कॉन्सेप्चुअलाइज किया है और आज ऑर्गेनाइज भी किया है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस यहाँ पे जो है वो ओरल ट्रेडिशंस पे ही चलते हैं, रिटन नहीं है। रिटन नहीं है की वजह से क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन जो है, प्रोसेस जो है बहुत
स्टेजेस में बढ़ा है, क्योंकि पहले तो ये ओरल ट्रेडिशंस है, मेमोरी पे चलते हैं, तो कुछ कुछ जो है भूल जाते हैं, कुछ कुछ जो है देना भी नहीं चाहते हैं। अगर कुछ अगर किसी को बताना चाहते हैं फिर भी एक दो शब्द जो है छूट जाते हैं। तो इसी के चलते चलते डिफरेंट स्टेजेस में अल्टीमेटली 10 नॉलेज से शायद 8 या 7 ही ट्रांसमिट हो जाते हैं, बाकी जो 2 या 3 जो है ख़त्म हो जाते हैं जनरेशन के साथ। तो इसलिए ये एक चैलेंजेस है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना। और हमारा ये नॉर्थ ईस्ट में इसका टोपोग्राफी जो है उसी को रेफरेंस को लेके तो इसका बहुत चैलेंजेस है। अरुणाचल प्रदेश में इतना ट्राइब्स है और इतना नॉलेज सिस्टम रिच है, काफ़ी मतलब जनरेशन से वो सस्टेनेबली जो है नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका डॉक्यूमेंटेशन करना, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड पार्ट जो प्रोस्पेक्ट्स जो है, इसका बहुत सारा प्रोस्पेक्ट्स है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में देखने से भी जितना जो मॉडर्न मेडिसिन है इसका डिस्कवरी जो है लोकल हेल्थ ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ये है। और यहाँ का हम लोग का जो रिसर्चर्स है, ये नॉर्थ ईस्ट जो है एक नेचुरल लेबोरेटरी है लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस रिसर्च करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट अलोन जो है कर नहीं सकते सब कुछ। सो हम लोग जो है एक यंग ग्रुप चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं आप स्टूडेंट्स या पोटेंशियल रिसर्चर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट और बाकी सारे इंस्टीट्यूट से आप लोग कोलैबोरेट कीजिए, लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस रिसर्च पे और आगे बढ़ाइए।